So now we'll study the fibula. Fibula is the lateral side bone, lateral bone of the leg. It is homologous with the ulna of forearm. The fibula means, in Latin, the fibula means pin. So fibula is a pin-like long bone. ठीक है? So it is slender. It is a post-axial bone, and it does not take part in the transmission of body weight. Fibula is a long, slender, post-axial bone in the leg, and it does not take part in the transmission of body weight. So what are the functions of fibula? The important functions are attachment of muscles, and its lower end along with the lower end of tibia form a socket, that is tibiofibular mortise, to hold the talus in place. Okay, now the parts of fibula, it has upper end, lower end and shaft. Okay, now upper end, it is called head of the fibula. This head is round, present a articulating facet for tibia. The head is round and present a circular articulating facet for tibia. Then there is an upward projection. Okay, here there is an upward projection from the head. This is called styloid process of fibula. This upward projection is called styloid process of fibula. Its lower end, this one is shaft, and then lower end. The lower end is flattened and it bears a triangular articulating facet here. This triangular articulating facet on the medial surface for articulation with the talus. Behind and below this articulating facet, there is a roughened fossa called malleolar fossa. Okay? This is medial surface. Over the medial surface of lower end of fibula, there is an impression, that is an articulating facet for the talus. Behind and below this articulating facet, there is a fossa called malleolar fossa. Okay? So this is medial surface. Opposite to the medial surface, this is lateral surface. This lateral surface has this projection, lateral projection, downward projection. This is called lateral malleolus. It is also subcutaneous. Lateral malleolus, medial surface पे articulating facet for talus, and below and behind this articulating facet, this is malleolar fossa. Okay, upper end styloid process, articulating facet for tibia, lower end flattened, medial surface and lateral surface. Shaft surfaces and borders are ill defined. Only this sharp border is seen over here. This is interosseous border. This one is interosseous border. Interosseous attachment with the other bone. The other bone here is tibia. It is on medial side. So this border is medial border. Interosseous border here is medial border. Okay? सो बॉर्डर्स और सरफेसेस इल डिफाइंड है, तो ये हम इतना इस पर फोकस नहीं करेंगे. आपको थ्योरेटिकली याद रखो कि 3 बॉर्डर्स होती है, 3 सरफेसेस होते हैं. द बॉर्डर्स आर एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंटरॉशियस मीडियल बॉर्डर. एंड सरफेसेस आर, अगर एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, इंट्रोशियस बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर है, तो सरफेसेस हो गए मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस.
ठीक है, सर्फेसेस कौन से मीडियल सर्फेस, लेटरल सर्फेस एंड पोस्टीरियर सर्फेस। ठीक है, लैटरल मैल्यूलस आइडेंटिफाई हो जाएगा, दिस मीडियल सरफेस पे आर्टिकुलेटिंग फैसेट मैल्यूलर फोसा, अपर एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है, एंड देन इंट्रोशियस बॉर्डर, एक ही शार्प बॉर्डर है दैट इज इंट्रोशियस बॉर्डर, ये मीडियल साइड में होगी। एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए यू हैव टू होल्ड द बोन इन वर्टिकल पोजीशन। ये जो फोसा है मैल्यूलर फोसा, दिस इज posteromedial, this one is posteromedial, it should be facing medially and it should be posterior। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, अगर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं तो ये हो गया एंटीरियर और ये हो गया पोस्टीरियर, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर। दिस सरफेस इज मीडियल सरफेस, इसको मीडियल ऐसे होल्ड करेंगे मीडियल साइड में। ठीक है, यहाँ पे थंब रखो, ऐसे इसको पकड़ो, दिस इज मीडियल साइड, दिस इज लेटरल, दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर, दिस वन इज अपर एंड एंड दिस वन इज लोअर एंड। ठीक है, अगर हम ऐसे पकड़ते हैं, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपर, लोअर और ये मीडियल सरफेस है, मीडियली फेस हो रहा है, तो ये कौन सी साइड की बोन होगी, राइट साइड की बोन। द मैल्यूलर फोसा शुड बी पोस्टेरोमीडियल, मैल्यूलर फोसा शुड बी पोस्टेरोमीडियल। ठीक है, इट शुड बी फेसिंग मीडियली एंड इट शुड बी ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ये एंटीरियर हो गया तो ये पोस्टीरियरली होना चाहिए। ठीक है, एंटीरियर, posterior, medial and lateral। okay, so the attachment के लिए, अच्छा पहले तो ये हो गया हेड, अपर एंड इज हेड, इट इज फॉलोड बाय दिस कंस्ट्रिक्टेड नेक, हेड के बाद आएगी नेक एंड देन शाफ्ट एंड देन लोअर एंड। ठीक है, अटैचमेंट अपर एंड पे क्या क्या अटैचमेंट होता है, अपर एंड पे दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस के बाद दिस पोर्शन, ये आर्टिकुलेटिंग फैसेट है, आर्टिकुलेटिंग फैसेट के अपोजिट दिस स्लोपिंग सरफेस फ्रॉम दिस स्टाइलॉइड प्रोसेस, यहाँ पे होगा इंसर्शन ऑफ बाइसेप फीमोरिस मसल का, यहाँ पे होगा इंसर्शन ऑफ बाइसेप फीमोरिस। देन अब सरफेसेस एंड बॉर्डर्स डिफाइंड नहीं है तो हमें ऐसे याद रखेंगे, मीडियल सरफेस जो होता है, मीडियल सरफेस पे अटैचमेंट होगा एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल का, लेटरल सरफेस पे लेटरल कंपार्टमेंट की मसल का और पोस्टीरियर सरफेस पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल का। ठीक है, मीडियल सरफेस पे अटैचमेंट होगा एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल का, लेटरल सरफेस पे लेटरल कंपार्टमेंट की और पोस्टीरियर सरफेस पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी मसल होती है, tibialis एंटीरियर होती है, देन एक्सटेंसर hallucis longus, एक्सटेंसर digitorum longus एंड पेरोनियस टर्शियस। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में, लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी मसल होती है, tibialis एंटीरियर, जिसका ओरिजिन किस पर था, टीबिया पे था। अब बची कौन सी, एक्सटेंसर hallucis longus, एक्सटेंसर digitorum longus एंड पेरोनियस टर्शियस। तो ये जो मसल आएगी, इनका इंसर्शन कहाँ पे, इनका अटैचमेंट कहाँ होगा, मीडियल सरफेस पे। एक्सटेंसर digitorum longus, एक्सटेंसर hallucis longus एंड पेरोनियस टर्शियस मसल। ठीक है, देन लेटरल कंपार्टमेंट में मसल होती है पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस।
पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस का अटैचमेंट होगा ओवर दी लेटरल सरफेस। लेटरल कंपार्टमेंट में पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, उनका अटैचमेंट लेटरल सरफेस पे होगा। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आती है tibialis posterior, फ्लेक्सर hallucis longus, सोलियस, काफ मसल कौन सी होगी, सोलियस। गैस्ट्रोक्नीमियस की जो मसल होती है मीडियल एंड लेटरल गैस्ट्रोक्नीमियस, उनका ओरिजिन होगा फीमर से, ठीक है, उनका अटैचमेंट फीमर पे होगा, टीबिया फिबुला पे नहीं होगा। फिबुला पे कौन सी मसल होती है, tibialis posterior, सोलियस एंड फ्लेक्सर hallucis longus, फ्लेक्सर hallucis longus। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टीबिया पे ओरिजिन था, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस टीबिया पे ओरिजिन था, फिबुला पे होगा फ्लेक्सर hallucis longus, ठीक है। तो टीबिया फिबुला के पोस्टीरियर सरफेस पे सोलियस, tibialis posterior और फ्लेक्सर hallucis longus मसल का ओरिजिन होगा। राइट, मसल अटैचमेंट हो गई। हमने देखा था ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस के पीछे जो स्लोपिंग सरफेस है, यहाँ पे बाइसेप फीमोरिस, मीडियल सरफेस पे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर hallucis longus एंड पेरोनियस टर्शियस। लेटरल सरफेस पे पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। पोस्टीरियर सरफेस पे सोलियस, tibialis posterior एंड फ्लेक्सर hallucis longus, ठीक है। देन दिस इज लोअर एंड, दिस इज फैसेट फॉर, दिस वन इज फैसेट फॉर टैलस, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग टैलस के अटैचमेंट, टैलस से जो अटैचमेंट के लिए लिगामेंट्स हो गए वो अटैच हो गए, ये आप एंकल जॉइंट पे पढ़ चुके हो। देन ये जो मेलुलर फोसा है, मेलुलर फोसा के नीचे देयर इज अ डिप्रेशन ओवर हियर, मेलुलर फोसा के नीचे ये डिप्रेशन दिख रहा है, दिस इज फॉर द कैल्केनोफिबुलर लिगामेंट, कैल्केनोफिबुलर लिगामेंट, कैल्केनोफिबुलर लिगामेंट। देन टैलस के ऊपर यहाँ पे जो रफ एरिया है, टैलस के ऊपर यहाँ पे होगा अटैचमेंट ऑफ इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिबुलर लिगामेंट। ये एंड टीबिया के साथ अटैच होगा, दिस लोअर एंड इट विल अटैच विद द टीबिया टू फॉर्म इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। उस जॉइंट का जो लिगामेंट होता है यहाँ पे अटैचमेंट के लिए जो लिगामेंट होगा दैट इज इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिबुलर लिगामेंट, इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द अटैचमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ फिबुला। अब इस पे वाई क्वेश्चन एक आता है, फिबुला वायलेट्स द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन, फिबुला वायलेट्स द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन, ये मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया था। वाई फिबुला वायलेट्स द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन, अब लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन क्या होता है, द सेकेंडरी सेंटर विच अपीयर्स फर्स्ट फ्यूजेस लास्ट। प्राइमरी सेंटर यहाँ आएगा शाफ्ट में, डायफाइसिस में, एफिफाइसिस में क्या आता है, सेकेंडरी सेंटर। सो द सेकेंडरी सेंटर विच अपीयर्स फर्स्ट फ्यूजेस लास्ट एंड दैट सेंटर इज ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन, पहले अपीयर होगा लास्ट में फ्यूज होगा, सो दैट एंड इज ग्रोइंग एंड। फिबुला में, फिबुला वायलेट्स द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन, फिबुला में दिस लोअर एंड it appears first and it fuses first, the lower end appears first and fuses first because this lower end it is pressure epiphysis, lower end is pressure epiphysis, and the upper end it appears last and fuses last because it is a traction epiphysis। यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, वेट ट्रांसमिशन का प्रेशर आ रहा है इस पे, सो दिस इज प्रेशर एफिफाइसिस। यहाँ पे जो लिगामेंट, यहाँ पे जो टेंडन्स अटैच है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रैक्शन, सो दिस वन इज ट्रैक्शन एफिफाइसिस।
So this upper end, it appears last and fuses last. This end appears first, lower end appears first and fuses first. Usually क्या होता है, the center, the secondary center which appears first fuses last. That end is growing end. But this end, it appears first, fuses first. This one appears last and fuses last. So this end is growing end of the fibula. ठीक है, तो ये लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन में नहीं बैठता. सो फिबुला वॉलेट्स द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फिबुला. ठीक है.